बार ना 2 प्रैक्टिकल्स कवर करवा दूँगी मैं। एक बार आप देख लो, फिर भी कुछ नहीं समझ में आया मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है? ओके लिखने मैम। के लिए आपको अभी नहीं लिखना है, मैं मटेरियल पोस्ट कर दूँगी आफ्टर योर एग्ज़ाम, ठीक है? जिस भी वीक में आपके एग्ज़ाम खत्म होंगे उससे नेक्स्ट वीक में मैं आपसे पूछूँगी प्रैक्टिकल के लिए। लाइक आपको 1 वीक मैं पूरा दूँगी लिखने के लिए। ओके। ठीक है? तो फाइल प्लीज़ तब तक पूरी कर लेना जब मैं आपको डेडलाइन दे दूँ। या इतने टाइम तक फाइल पूरी कर लेना। मुझे बता देना आप लोगों को वीडियो दिख रही है कि नहीं दिख रही है? विज़िबल? यस मैम। यस मैम। ऑडिबल? यस मैम। Yes, यस मैम। ओके। Hello, everyone. In this segment of the biochemistry, we are going to be discussing about the procedures involved in identifying the blood types. Aim. The aim is to identify the type of the blood that a person has. Blood typing is done so that you can safely donate your blood or receive a blood transfusion. It is also done to see if you have Rh factor on the surface of the red blood cells. Blood is often grouped according to the Landsteiner's ABO blood grouping system, and the 4 major blood types according to this classification includes type A, type B, type AB, and type O. The A and B are antigens which are commonly detected on the surface of the red blood cells. Materials required: freshly collected sample blood, porcelain spot plate, normal saline, a small test tube, a dropper, and anti-sera of anti-A, anti-B, and anti-D. The procedure of blood typing: first, fill half of the test tube with normal saline. Add 2 to 3 drops of blood to the test tube containing the normal saline. Now take clean porcelain spot plate and then mark them A, B, C, and D. Put 1 drop of anti-sera solution, anti-A, anti-B, anti-D in A, B, and D porcelain spot plate respectively. With the help of a dropper, add drops of normal saline mixed with blood in all of the spot plates. Now gently shake the porcelain spot plate and wait for 10 minutes. Look for agglutination and compare with the control C. If dust particles like appearance is visible, then it is agglutination. Now inferences after observation. If agglutination is present in spot A, then the blood group has A antigen. If agglutination is present in spot B, then blood group has B antigen.
If agglutination is present in spot D, then the blood group is Rh positive. If agglutination is absent in spot D, then the blood group is Rh negative. If agglutination is present in both spot A and spot B, it means that the patient has both A and B antigens on the surface of his RBCs. Now here's an image where you can see agglutination in A, B, and D spots in the porcelain spot plate, which then gives the blood group as A, B, positive. The positive denotes Rh positive. हाँ जी, कुछ समझ में आया क्या शो कर रहे हैं? मैम ये डी वाला जो था Yes, ma'am. स्पॉट में वो Yes, ma'am. हाँ डी हाँ वाला जो था हाँ वो जी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आरएच फैक्टर वाला था वो। हाँ जी, जो हम लोग 3 सॉल्यूशंस लेते हैं, 3 में से 2 तो एंटीजन के लिए होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी के लिए। जो आपका व्हाइट कलर का सॉल्यूशन जो आपको दिख रहा था, दैट इज एंटीजन डी। वो डी इंडिकेट करता है रिसस फैक्टर को, आरएच फैक्टर को। हम बोलते हैं ना कि हमारा ये ब्लड पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे है, तो वो सॉल्यूशन की हेल्प से हमें पता चलता है कि अगर एग्लूटिनेशन हो जाती है, वो स्पॉट्स आपको दिखाई दे जाते हैं, मींस कि वो पॉजिटिव है, और अगर नहीं दिखते हैं तो मींस पर्सन इज हैविंग नेगेटिव आरएच फैक्टर। समझ में आया सबको? इजी Yes, है ma'am. ये तो। यस मैम। मैं एक दूसरी वीडियो और एक शो कर रही हूँ, ठीक है, वो भी देख के बता देना कि कोई डाउट हुआ तो हम डिस्कस कर देंगे वो। विजिबल? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the Sahalis hemoglobinometer. Hemoglobinometer pipette. There is a 20 microliter mark on hemoglobinometer pipette up to which we have to fill the blood. Hemoglobinometer tube. There are two types of markings on hemoglobinometer tube. One shows hemoglobin gram percentage value and another shows percentage value. Usually hemoglobin is reported as grams of hemoglobin per 100 ml, which means gram per dl or gram percentage. Comparator box which have color strip. A bottle which contains N by 10 HCl. Here the N means normality. Define normality or what is normal solution. When 1 gram equivalent weight of a substance is dissolved in 1 liter of the solvent is called 1 normal solution. Can we use normal HCl or any strong acid or alkali? No, we cannot use because it will cause destruction of proteins which are present in the hemoglobin and hemoglobin value will alter. Stirrer or glass rod which used for mixing purpose. Distilled water for dilution purpose. Instead of distilled water, can we use N by 10 HCl for dilution? Yes, we can, but we are not using it because of economic reasons. Instead of distilled water, can we use tap water? No, because it's not pure and contains microorganisms. Principle of Sahalis method. The amount of hemoglobin can be estimated by conversion of known volume of blood into acid hematine by addition of dilute HCl, which means N by 10 HCl, and
calorimetric comparison with a suitable standard. Now we begins with the procedure. With the help of dropper, fill N by 10 HCl in hemoglobinometer tube up to its lowest marking, which means up to 2 gram percentage yellow marking. Put hemoglobinometer tube in a comparator box. Prick your finger. Which finger you are going to prick? Only prick middle finger or ring finger in its distal part, as you are seeing in the photograph. Why? Because palmar fascia of thumb, index finger and little finger extend to the forearm. If we prick these fingers and infection occur, there are chances that it might spread to the forearm. Apply spirit swab over the pricking area, and we have to wait till the spirit has been dry. Why we have to wait till the spirit has been dry? If we prick before the spirit has been dry, the blood which coming out from the pricking area get mixed with the spirit and it gets hemolyzed. So we need to wait till the spirit has been dry. Take a lancet and prick distal part of the finger. Only single prick. Avoid multiple pricking. With the help of hemoglobinometer pipette, suck the blood up to 20 microliter marking. Draw the blood in the hemoglobinometer tube, as you are seeing in the photographs. Mix contents thoroughly and put hemoglobinometer tube in a comparator box. Wait for 10 minutes. During this time, hemoglobin is converted to acid hematine, which looks brown in color. If less than required amount of HCl is taken, then it may not be enough to convert all the hemoglobin which is present in 20 microliter of blood to acid hematine, hence give lower value for hemoglobin. After 10 minutes, add distilled water drops till the color of the solution is same as that of the comparator box color strip. When you are adding distilled water, mix the solution with the help of stirrer. The color of the acid hematine solution should be checked frequently to prevent over dilution. When you compare the color of the solution with that of standard comparator box color strip, keep the stirrer above the solution but do not take it out. If the stirrer is taken out of the tube, the solution sticking to the stirrer will be lost and will give a false low result. If the stirrer remains in the solution, the color of the solution becomes lighter. Comparison should always be done by holding the comparator box with hemoglobinometer tube at eye level and stirrer slightly lifted above the solution, but must not be taken out of the tube. When color of the solution is same as comparator box color strip, hold the tube, lift the stirrer up and look for readings in hemoglobin gram percentage as you are seeing in the right photograph. Here are the normal values of the hemoglobin.
At birth, it is around 23 gram per dl, slightly higher because RBC count is more. In adult male, it is around 14 to 18 gram per dl, and in adult female, it is around 12 to 15.5 gram per dl. हाँ जी, समझ में आया वीडियो में क्या शो कर रहे थे? मैम वो जो उसने ट्यूब Yes, के अंदर मैम चेक किया था, उसके बाद उसने हम्म। किसके में डाला था ग्राम पर डीएल चेक करने के लिए? कहीं में नहीं डाला था, जिसमें आपने सोल्यूशन डाला था ना स्टार्टिंग में, HCl का सोल्यूशन डाला था, जिसमें आपने थोड़ा सा HCl सोल्यूशन डाला था, ठीक है, और उसके बाद आपने उसमें ब्लड ऐड किया था, उसी में मार्किंग्स बनी हुई है। ओके दोनों जो ट्यूब्स के बीच में आपका जो कलर है वो दोनों कलर से मैच हो जाता है ना, इट मीन्स अब आपको डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है। डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है, इट मीन्स आप लोअर मेनिस्कस में, मेनिस्कस जानते हैं क्या होता है? यस मैम। जो लोअर मेनिस्कस है वहां उसके बिल्कुल साथ में जो आपको रीडिंग दिखाई देगी, दैट मीन दैट इज योर HB। लेकिन अगर आपके प्रोसेस में थोड़ी सी भी गलती होगी, मान लीजिए आपने जरूरत से ज्यादा जो है अपना सोल्यूशन जो है, जो आपका ब्लड सैंपल है उसे डाइल्यूट कर दिया, तो आपकी फॉल्स रीडिंग आएगी। अगर आपने उसमें स्टरर को बाहर निकाल दिया, स्टरर के साथ आपने नहीं चेक करा या आई कांटेक्ट में लाकर नहीं देखा, तो भी आपको फॉल्स रीडिंग मिलेगी। सो इट इज अप टू कि आप उसको कैसे परफॉर्म कर रहे हो, अदरवाइज यू विल गेट अ फॉल्स रीडिंग। ठीक है, हाँ जी। मैम इसमें तो जैसे मतलब एरर्स भी तो आ सकते हैं, कलर तो वेरिएशन हो सकती है मतलब हाँ, पर्सन टू आ सकते पर्सन। हैं। हाँ, वो देखो, वो कलर वेरी करेगा, जैसे कि मान लीजिए किसी का जो ब्लड है, ठीक है, वो ज्यादा डेंस है, थिक है, HB उसका ज्यादा है, तो उस केस में उसे ज्यादा डाइल्यूट करने की जरूरत होगी। बिकॉज हमें जो दोनों आपको वो दे रखे हैं ना, जो आपको कंपैरेटर बॉक्स दे रखा है, उसमें तो आपको स्ट्रिप्स दिखा रखे हैं, उन स्ट्रिप्स के साथ आपका कलर मैच करना चाहिए। अगर वो कलर मैच नहीं करता तो हम उस रीडिंग को फाइनलाइज नहीं कर सकते। एट एनी कॉस्ट आपको वो जो कलर है वो दोनों का मैच करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि आपका जो HB है दैट इज फाइनलाइज, कि ये लोअर मेनिस्कस में ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है पर्सन के HB के साथ। तो ये जो मेथड रहता है ये लैब में हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, आप फिंगर प्रिक करते हैं, फिंगर पे कभी भी प्रेशराइजेशन नहीं की जाती है। ठीक है, उसको प्रिक करने के बाद जो आपकी ट्यूब होती है वो उससे उसको आपको सक करना होता है, फिर उसमें बबल्स नहीं आने चाहिए। अगर बबल्स आ जाएंगे तो भी आपके सोल्यूशन में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर उस ट्यूब की हेल्प से आप उस जो मेन आपके पास ट्यूब है जिसमें अल्टीमेटली आपको सोल्यूशन को मिक्स करना है, उसमें आप उसे ब्लो करते हैं, लेकिन ब्लो करते हुए ध्यान रखना है कि आप उसमें अपने तरफ से कोई एयर बबल्स ना ऐड कर दें। तो उसके बाद आपके पास जो है HB कंटेंट फाइनलाइज हो जाता है कि पर्सन का HB कितना है। नहीं मैम, मैं जैसे ऐसे कह रहा था कि जैसे मतलब जो बंदा टेस्ट कर रहा है उसको भी तो जैसे कई बार कलर्स में वेरिएशन आ जाती है ना, अलग अलग बंदे के आईसाइट के हिसाब से कलर वेरिएशन हो जाएगी। हाँ, तो उस उसमें वो केस में भी क्रॉस तो चेक फिर वो हो करवाया सकता है जाता है ना ना, काम। जैसे अकेले की नहीं ना होता। जैसे मान लीजिए आप सैंपल अपना लेकर चेक कर रहे हो, आप ये देखोगे कि हाँ भाई आपने किसी लैब में जो भी आपका फ्रेंड है उसको पूछ सकते हो कलर सेम है। फिर उसके बाद आप एक बार टीचर के पास कंफर्म कराने के लिए आते हैं कि हमारा आ गया। अगर मुझे लगेगा कलर नहीं ठीक है तो मैं आपको बोलूंगी नहीं, से और डाइल्यूट करने की जरूरत है। ये ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा तब आपको बोला जाएगा कि ये रिपीट करिए। और उसमें जब हम स्टरर से जो पूरी मिक्सिंग करते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप बहुत जोर से स्टरर के साथ मिक्स करते हैं, वो बहुत डेलिकेट होती है, ये बहुत जल्दी टूट जाती है। इट शुड बी मतलब ये हैंडल्ड विद मेथड केयर। इतना एक्यूरेट तो नहीं है, मतलब है ना, कुछ ना कुछ एरर तो रहेगा इसमें हाँ, ना। देखिए ये मैनुअल लेवल पे है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज इन द लैब ओनली ना। जब आप बाहर से HB टेस्ट कराते हैं वो दूसरे मेथड यूज करते हैं, ओके वो मैम। डिफरेंट मेथड यूज करते हैं और उनकी स्पेशलाइजेशन होती है तो उनकी प्रैक्टिस होती है, उनसे मैनुअल एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। आप पहली बारी में करेंगे तो मैनुअल एरर आने के चांस रहते हैं। मैम वो डिफरेंट मेथड क्या यूज कर सकते हैं, क्या करते हैं? जो लैब में यूज करते हैं, नहीं अभी आप बताए कि वो डिफरेंट मतलब प्रोसेस हाँ, यूज करते हैं लैब्स में करने के लिए। इसके अलावा भी और दूसरे मेथड को हम यूज कर सकते हैं। उन दूसरे मेथड्स में जनरली आपके मेथड जो है वो साइटोहीमोमीटर के नाम से आता है, उसकी हेल्प से आप इसको चेक कर सकते हो।
लैब्स में हमारे पास एडवांसमेंट्स होती है ना, जो आप लेबोरेटरीज में जाते हैं चेक करवाने के लिए, मेडिकल लेबोरेटरीज होती हैं, दैट कंटेन्स एडवांस्ड टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स। लेबोरेटरी उनके पास पूरी डेवलप्ड होती है, ठीक है, प्रॉपर उस पे स्पेसिफिकेशंस होती हैं, टाइम टू टाइम वो चीजें चेंज होती हैं, तो वो सारी चीजें जो है लैब में ज्यादा अच्छे से होती है। यहाँ सिर्फ आप करने का तरीका जानते हो, आप लैब में जो भी प्रैक्टिकल करते हो दैट इज लाइक कि आप उसमें सिर्फ प्रोसेस सीखते हो। आप उससे ये नहीं कह सकते कि जो भी आप कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हो या कोई टेस्ट कर रहे हो दैट विल बी एक्यूरेट ऑलवेज। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग दैट ऑन द लैब लेवल, और दूसरा कि आप एज अ स्टूडेंट लेवल पे कर रहे हो, ठीक है। कोई टेक्नीशियन होगा जो वेल ट्रेन्ड है, वो ऑब्वियसली उसके पास से जो मैनुअल एरर आने के चांस है उतना कम रहेंगे। मैम मैम ये हाँ जो जी। हमारे पास SCl है 0.1 में नॉर्मल SCl कितना डालना होगा हमें ट्यूब के अंदर पहले, क्योंकि ज्यादा डाल दिया तो ऑलरेडी डाइल्यूट हो नहीं नहीं, जाएगा। वो ज्यादा नहीं डालते, उसमें क्या रहता है लोअर मेनिस्कस में डालते हैं अराउंड, जब मार्किंग आप 2 mg पर DL की मार्किंग देखते हैं जो ट्यूब है, उतना सा HCl डलता है उसमें, ताकि आपका जो ब्लड है वो नीचे स्टिक ना कर जाए। उसके बाद आप धीरे धीरे डाल के उसको मिक्स करते हो। हाँ क्या दिनेश? मैम HCl की वजह से ब्राउन कलर आता है। हाँ वो रिएक्शन हो जाता है ना, उसमें एसिड हेमाटिन बन जाता है, वो जो हमारा HB है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो एसिड हेमाटिन बन जाता है, वो रिएक्शन देता है जिसकी वजह से उसका कलर आता है। फिर धीरे धीरे उस कलर को आप डाइल्यूट करते हो ताकि जो कंपैरेटर बॉक्स है जो ऑलरेडी आपको कलर वहां दे रखे हैं उसके साथ मैच कर पाओ आप उसे। ओके मैम। क्लियर हो गए? 2 प्रैक्टिकल्स करवाए हैं मैंने आपको। एक प्रैक्टिकल में आपने ब्लड ग्रुप की डिटर्मिनेशन करी है, ठीक है, एक प्रैक्टिकल में आपने HB कंटेंट की डिटर्मिनेशन करी है। इन लैब्स जब आप ब्लड ग्रुप का प्रैक्टिकल करेंगे, पॉसिबल है वहां पर आपको हो सकता है पोर्सलिन की प्लेट्स ना मिले, वहां हमारे पास ग्लास स्लाइड्स होती हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, से आपने सैंपल कलेक्ट करा, ठीक है, तो वो सैंपल जो है विद द हेल्प ऑफ जो भी हम उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, ठीक है। डाइल्यूट करने के बाद वो ड्रॉपर से जो है 3 ड्रॉप्स जो है स्लाइड के ऊपर डाल दी जाती हैं। फिर उसके बाद सोल्यूशन डाल के उसको स्टरर से मिक्स कर दिया जाता है, तब भी आपको एग्लूटिनेशन दिखाई दे जाती है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि वहां पर आपकी पोर्सलेन प्लेट की जरूरत हो, वो सिर्फ और सिर्फ मिक्सिंग के लिए होता है, उसका एज सच कोई वो नहीं होता, ठीक है। और आपको पता है जो ग्लास है वो एज सच जो है ब्लड के साथ उसकी कोई लीचिंग वगैरह नहीं होती, इसलिए हम ग्लास को जो है कॉमनली यूज कर लेते हैं फॉर स्टोरिंग सम काइंड ऑफ एसिड्स और केमिकल्स। तो उस चीज के लिए आप ग्लास को भी यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि पोर्सलेन की प्लेट ही यूज करनी, ठीक है। तो एक ही आपकी जो स्लाइड है उस पर आप 3 डिफरेंट ड्रॉप्स ऐड करके, उसके बाद जो 3 डिफरेंट आपके सोल्यूशंस है उसको ऐड करके मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो आपको वहां पर वो स्पॉट्स दिखाई दे जाएंगे जिसे हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को, कोई डिफिकल्टी? No. ये प्रैक्टिकल का मटेरियल आपको शेयर हो जाएगा, ठीक है, और आपको इसे अटेम्प्ट करना है। आपको एक वीक मिलेगा आफ्टर योर सेशनल एग्जाम, उसके बाद आप फाइल कंप्लीट करके देना मुझे, ठीक ओके है। मैम। अभी तक सिलेबस में जो भी फर्स्ट सेशनल में कुछ सिलेबस आ रहा है उसमें कोई डाउट्स? अदरवाइज मैं पूछना शुरू करूं फिर। एनी डाउट्स? मैम जो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम वाले थे उसके हाँ अंदर जी। कुछ आपने किया था, जो उसके लिम्फ नोड्स आते हैं ऊपर से आते हैं कैसे, वो हाँ इम्पोर्टेंट जी। है? हाँ हाँ, सारे इम्पोर्टेंट है, पढ़ाया हुआ सारा इम्पोर्टेंट है, उसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। क्वेश्चन कहीं से भी 2 मार्क्स में घूम फिर के आ सकता है, पहले बता रही हूँ, बाद में नहीं कहना कि मैम हमें ध्यान नहीं था, हमने ऐसे पढ़ा नहीं, ठीक है। 2 मार्क्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं अगर आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि उसमें मार्क्स कटने की गुंजाइश बहुत कम रहती है, उसमें 2 में से 2 नंबर भी पूरे मिल जाते हैं। अगर आप ढंग से अटेम्प्ट करते हो तो 10 नंबर आपके वहीं पक्के हो जाएंगे, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है उसे, ठीक है। सो ट्राई टू ग्रैब द मार्क्स जहां पर कटने के चांस कम है। 10 वाले क्वेश्चन में 10 में से 10 नहीं मिलेंगे, कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, एक्सटेंडेड 8.5, इससे ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने हैं। समझ आ रहा है भाई? यस मैम। पेपर ढंग से करना। अब सब कुछ क्लियर है तो मैं वाइवा स्टार्ट कर देती हूँ, एक तरह से थ्योरी वाइवा। आपको सब आता है अब तो?
पूछ लें क्वेश्चन, फिर तो सब आता है। अब नहीं हम बोलेंगे यस मैम, अब हमें सब कुछ आता है। मैम हाँ वो लिम्फेटिक सिस्टम का नोट्स, मतलब जैसे अगर पूरा 10 मार्क्स वाला है तो उसमें कंफ्यूजन है, मतलब लिखना कैसे है, confusion? कितना सारा है कि राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में आपने क्या क्या चीज पढ़ी है? लिम्फेटिक सिस्टम में आप बताइए, फिर बताती हूँ कहाँ छोड़ना है, क्या ऐड करना है। क्या पढ़ा है आपने नोट्स के हिसाब से लिम्फेटिक सिस्टम में अभी तक? पढ़ा है कि नहीं? मैम अभी तैयारी शुरू नहीं करी है, पेपर से एक दिन पहले बैठेंगे पढ़ने। नो मैम ऐसा नहीं है। ऐसा ही है मैम, एक दिन पहले बैठेंगे, फिर हम नहीं तो हम भूल जाएंगे जो हम पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम में अगर आपको डिटेल नोट आता है तो उसमें सबसे पहले आप सिस्टम को डिफाइन करेंगे। कोई भी सिस्टम आता है, ठीक है, इट्स नॉट विद द लिम्फेटिक, आपको सिस्टम डिफाइन करना होता है। उसके बाद आप उसके कंपोनेंट एक्सप्लेन करते हैं। कंपोनेंट एक्सप्लेन में मतलब उस वो जो सिस्टम है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, सारे पार्ट्स आप उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं, लिम्फेटिक सेल्स हैं, ठीक है, देन लिम्फ है। तो इन सब में जो चीजें प्रेजेंट हैं उनको आप एक एक करके एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसमें कंटेंट एक्सप्लेन करोगे। फिर उसके बाद जब आपने सारा कंटेंट एक्सप्लेन कर लिया तो एक डायग्राम है, अगर आपको ध्यान हो, आई थिंक सेकंड और थर्ड स्लाइड पे एक डायग्राम है जिसमें आपने पूरा सिस्टम एक्सप्लेन कर रखा है विद द वीनस सिस्टम और आर्टीरियल सिस्टम। एक रेड और ब्लू कलर की लाइंस हैं जिसमें आपको वो दिख रहा होगा कि जो एक्सेस फ्लूइड है वो कैसे जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसे एब्जॉर्ब करता है। दैट डायग्राम इज मस्ट, वो डायग्राम बनाइए। उसके बाद आप फंक्शंस लिखिए कि लिम्फेटिक सिस्टम की जरूरत क्या है बॉडी में, ठीक है। वो सारे फंक्शंस जब आप पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका जो टॉपिक है पूरा वाइंड अप हो जाएगा। समझ रहे हो? जो पार्ट मैंने आपको बताया है ना जिसमें आपने उसके कंपोनेंट एक्सप्लेन करने, कंपोनेंट एक्सप्लेन करने में ही आपके सारा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। उसमें जैसे लिम्फेटिक डक्ट्स हैं, दो तरह के होते हैं, राइट होता है, लेफ्ट होता है। राइट में क्या चीजों का कंपोजिशन होता है, थोड़ी थोड़ी चीजें वो उसमें आप ऐड कर दो, आपका पूरा 10 मार्क्स का कंटेंट बन जाएगा। कहीं अगर आपको लगता है कि कोई डायग्राम इजी है, इसके अलावा कुछ और भी ऐड कर सकते हैं जिससे मार्क्स ज्यादा आ जाएं, तो दो चार चीजें और ऐड कर दो, ठीक है। तो पेपर अटेम्प्टेशन विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कौन कैसे अटेम्प्ट कर रहा है। कोई सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है, कोई अच्छे मार्क्स लेने के लिए पढ़ रहा है, ठीक है, सो कोई लर्निंग के लिए पढ़ रहा है, वो सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, उसको आप अकॉर्डिंगली मैनेज करिए कि कहाँ कितना रिक्वायर्ड है। 5 मार्क्स में पूछा है तो उसको अकॉर्डिंगली कट शॉर्ट कर दीजिए कि ये चीजें जरूरी है इसमें लिखनी, तो ये लिखनी है, बाकी चीजें हम स्किप कर सकते हैं। सो ट्राई टू डू विद दैट, आपको इजी रहेगा। जहां डायग्राम पॉसिबल है डायग्राम बनाइए, जैसे लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड की जो डायग्राम है वो बहुत इजी है, आप बना सकते हो उसको। छोटी सी डायग्राम है, बीन शेप सा दिखाई देता है वो, तो वैसे आप बना सकते हो उसको, ठीक है। यस मैम। यस थोड़ा मैम। पढ़िए तो उसके बाद Yes, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ये मत सोचो कि हमने टेस्ट दिए हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें सब याद है, सब भूल जाओगे पेपर में अगर नहीं पढ़ोगे। हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर दिया, उसके बाद बिल्कुल दूसरा बिल्कुल कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। 10 मार्क्स वाला छूटा तो पास होने वाले चांसेस कम हो जाते हैं, ओके। ठीक है। तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट करिए, फिर 5 मार्क्स के करिए, उसके बाद 2 मार्क्स के लिए करिए, ताकि लास्ट में टाइम थोड़ा भी रह जाए तो आप उसे वाइंड अप कर सकें। और स्पीड प्लीज अपनी फास्ट रखिएगा, नहीं तो आपका पेपर छूटेगा। 1.5 घंटे का टाइम है ये, मान के चलिए। ट्राई टू मैनेज द स्पीड। राइटिंग में खुद ही पहचान लूंगी आपकी, पर पेपर मत छोड़ना, ठीक है। ओके और मैम। कोई वो नहीं ओके करना है कि मल्टीपल आपको पेन यूज करने की जरूरत है। बस अपना जो कंटेंट है उसे हाईलाइट जरूर करना, लेकिन जो सही है उसे। गलत चीजों को हाईलाइट करोगे तो वहां से मार्क्स कट जाएंगे। कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई पॉइंट मिस है, तुमने वहां आसपास कहीं हाईलाइटिंग कर दी है, तो फटाफट जो है वो पकड़ में आ जाती है चीज,
ठीक है। सो हाईलाइटिंग, अंडरलाइन, कोई भी हेडिंग लिख रहे हो उसको सेपरेट करके लिखना, और प्लीज कंजस्टेड मत लिखना। जहां पे भी लिखोगे, जहां पे भी आप अपना टेस्ट दोगे, पेपर दोगे, कंजस्टेड मत करना। तुम जितना कंजस्टेड कर दोगे उतना जो मेन कंटेंट है वो छूट जाता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा स्पेस जरूर छोड़ना बीच में। कोई डाउट? पेपर कैसे लिखना है, क्या करना है, बार बार पूछ रही हूँ। मैम क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, मतलब हम अपलोड होंगे वहां पे कि स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे? क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर की तरह यहाँ स्क्रीन पे शेयर हो जाएगा। जैसे अभी आपको पीपीटी शो होती है ना, ऐसे आपको एक क्वेश्चन पेपर शो हो जाएगा। वो सारा टाइम 1.5 आवर आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा अपनी, तो आप वहां से देखकर लिख सकते हैं। क्लासरूम पे पोस्ट हो जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर। किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही है, क्लासरूम से देख सकते हैं। आप लोगों के ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा क्वेश्चन पेपर। तो हर तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर की एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। ओके। डेट शीट तो आई थिंक मिल गई आप लोगों को। यस मैम। यस मैम। लास्ट एग्जाम कब तक है? 14 तक है लास्ट में। 14 तक है। 14 नहीं, दीपक कह रहा है 15 तक है। अच्छा नहीं, 14 ही है, ठीक है। देख लो भाई, 14 है 15 है, कब तक है, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जितना टॉपिक अभी तक पढ़ा है, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? डाउट नहीं है या पढ़ा नहीं है? क्या बात है, क्लास बहुत सुस्त है क्या? मैंने तो कुछ पढ़ाया भी नहीं जो तुमको नींद आनी शुरू हो गई। मैम जो ये हमारा क्वेश्चन है एक हीमोस्टेसिस में, इसमें एग्जैक्टली क्या हमने मेंशन करना है एग्जाम में? हीमोस्टेसिस में आपको पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है। उसमें आपको पूरी प्रोसेस कर दी, इसमें पाथवेज भी लिख दिए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स मेंशन करने पड़ेंगे नाम। हाँ, अगर 10 मार्क्स में है तो थोड़ा बहुत क्लॉटिंग फैक्टर्स मेंशन करोगे ना आप उसमें, और एक टेबल बना देना ना उसमें। यस, और क्लॉट रिट्रैक्शन ऑफ और लाइसिस ऑफ ब्लड क्लॉट, ये भी आएगा। हाँ, ये देखो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कंटेंट देखो ना। 10 मार्क्स में पूछा जाएगा तो कंटेंट रिक्वायर्ड है ये सारा, जिसमें आप ये सब चीजें मेंशन करोगे। स्टार्टिंग विद की प्रोसेस क्या होती है, हीमोस्टेसिस क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। उस प्रोसेस में आप सारे जो भी पार्ट्स हैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। फॉर एग्जांपल अगर वहां कहीं सेरोटोनिन लिख रखा है तो उसको आप हाईलाइट करोगे। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे जो है पूरी प्रोसेस जो है उसमें मेंशन करोगे, जिसमें आप ये जो भी आपका है फैक्टर्स हैं, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, इनका एक टेबल बना दिया। स्टेजेस ऑफ क्लॉटिंग है, ठीक है, जिसमें जिसमें आपका क्लॉट फॉर्मेशन का मैंने एक चार्ट बता रखा है, वो चार्ट बना सकते हैं आप उसमें। ये रिट्रैक्शन वगैरह सब उसी के बीच के पार्ट है, ठीक है। तो उसमें अगर आप कैल्शियम विटामिन वगैरह का रोल भी अगर ऐड करते हैं तो वो गलत नहीं है, वहां तक आप कंटेंट उसको खींच सकते हैं, ठीक है। यस, और मैम एक क्वेश्चन है थ्रोम्बोसिस, इसमें एग्जैक्टली कैसे मेंशन कर सकते हैं इसकी डिफाइन? थ्रोम्बोसिस में तो जैसे मान लीजिए आपको 5 मार्क्स में आता है थ्रोम्बोसिस में, तो उसके बारे में पहले लिखिए कि थ्रोम्बोसिस होती क्या है, ठीक है। और थ्रोम्बोसिस जो है बेसिकली क्लॉट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो बॉडी ऐसा क्या है बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं करता, वो सारे फैक्टर्स आप मेंशन करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद कॉज क्या होते हैं, सारी चीजें ठीक होने के बावजूद भी ऐसे क्या रीजन है जो थ्रोम्बोसिस हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस एक्सप्लेन करो कि जो वो थ्रोम्बस है, जो वो क्लॉट है, वो बनता जो है वो कहाँ कहाँ होता है, जैसे लंग्स में है, ब्रेन में, हार्ट में, कहाँ पर है। वो थोड़ी बहुत चीजें आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, उसमें ये वाइंड अप हो जाएगा। आई थिंक मैंने ये टर्म्स आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बता रखी है कि एम्बोलिज्म क्या होता है, थ्रोम्बस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, याद है, बताई थी मैंने। यस मैम, एम्बोलिज्म मैम जो क्लॉट होता है वो ट्रैवल करता है अंदर। हाँ, एम्बोलस होता है जो मूविंग क्लॉट होता है, जिसको किसी एक लोकेशन तक पहुंचना होता है। थ्रोम्बस जो होता है वो आपके जो वेसल्स होती है उसके अंदर ही जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। जो एम्बोलिज्म वाला सीन होता है, जो एम्बोलस होता है, वो बाहर से आके जो है ब्लड वेसल्स पे जाके स्टिक करता है और उनको बाहर से रप्चर करना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीजें आपको डिफरेंस में पूछी जा सकती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बस एंड एम्बोलिज्म और एम्बोलस?
ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप इनके बारे में लिख दोगे तो ये हो जाएगा, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। और कोई डाउट भाई? मैम हाँ जी। हमने जैसे अभी अनिकेत ने पूछा हीमोस्टेसिस के बारे में, मैम इसमें जो सबसे पहले हम जो प्राइमरीली समझाएंगे वो तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। अगर हम स्टेप बाय चलें, आपको स्टेप्स में बोलता हूँ, बताना मैं सही बोल रहा हूँ नहीं। तो सबसे पहले वैसोकंस्ट्रिक्शन के बारे में हम लिखेंगे, तो डिफाइन सबसे पहले डिफाइन करा कि हीमोस्टेसिस क्या होता है। फिर मतलब सर्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स जो सीरीज में होते हैं, तो उसमें सबसे पहले वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है कि जो जिस जगह रप्चर होता है वहाँ पे वो वेसल्स होती है वो डायलेट करना शुरू कर देती है ताकि ब्लड फ्लो रुकना शुरू हो जाए। वहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। तो हम पहले तो वैसोकंस्ट्रिक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करा, फिर हमने बताया कि प्लेटलेट प्लग है जो लूज प्लग फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है वहाँ पे। डिफरेंट मतलब रीजन बताएंगे क्या क्या फैक्टर एक्यूमुलेट हो रहे हैं वहाँ पे, एग्रीगेशन होना शुरू हो रहा है। तो जब वो फाइनली फॉर्मेशन हो जाता है तो हम तब थर्ड प्रोसीजर समझाएंगे कि ब्लड कोगुलेट हो रहा है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है। तो वहाँ पे फिब्रिनोजन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लाएंगे कि थ्रेड्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाते हैं, जो एग्रीगेट बना और वो अट्रैक्ट कर रहा है बहुत सारे सबको और अलग अलग प्लेटलेट्स को ऑल ओवर द बॉडी। और उसके बाद फिर जो वहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो हमने कोगुलेशन ऑफ ब्लड में उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो मैम ये इतना ही फिलहाल प्रोसीजर में यहीं तक रखेंगे कि ब्लड कोगुलेशन ऑफ ब्लड ये लास्ट स्टेप होगा कि कैसे बना है। इसके अलावा उसके बाद आप स्टेजेस ऑफ क्लॉटिंग लिखोगे। पहले आप ये देख रहे हो कि बॉडी के अंदर अगर कुछ कोई लॉस होता है तो बॉडी में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। ठीक है, आपने क्लॉट फॉर्मेशन कोएगुलेशन तक देख लिया। अब वो जो प्रोसेस है क्लॉटिंग की होती कैसे है, ठीक है, कौन सा पाथवे इन्वॉल्व होता है, किस तरह से आपका कौन सा फैक्टर एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से पूरी जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होती है, वो प्रोसेस आपको उसके बीच में मेंशन करनी है। लाइक अगर आपको ध्यान हो, एक टेबल था बीच में, हाँ, जिसमें हमने बताया था कि एक्टिवेटेड होते हैं हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो वो किस तरह से इनएक्टिव एक्टिवेटेड में कन्वर्ट होते हैं। फिर आपका जो आगे जो थ्रोम्बिन है, ठीक है, और जो आपका फिब्रिनोजन है, ये फिब्रिन जो है वो कन्वर्ट होता है, एक्टिवेटेड होता है, उसके बाद आपका क्लॉट बनता है। ठीक है, तो फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। ये जो पूरी प्रोसेस है ये आपको प्रोसेस उसमें मेंशन करनी है। प्लस जो भी आपने फर्स्ट 3 पॉइंट्स बताए हैं, लाइक वेसोकंस्ट्रिक्शन है, या फिर आपका फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग है, या कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड है, इनमें आपको डायग्राम्स दिखेंगी। मैंने आपको इसमें इमेज शो कर रखी हैं, जो पीपीटीज है उसमें जो आपको इमेज दे रखी है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है। आप उसे ड्रॉ करेंगे तो उससे जो मार्क्स गेन करने के जो पॉइंट है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और आपका कंटेंट भी जो है वो फीलिंग सा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ आपने पैराग्राफ भर रखे हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ आपने एडिशंस नहीं कर रखा है। तो ये डायग्राम्स आप उसमें बना सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, फॉर द 2 मार्क्स क्वेश्चन, आप लोगों के यहाँ स्लाइड में जितनी भी एब्रिविएशंस दे रखी हैं दैट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, तो वो 2 नंबर में 5 नंबर में पूछी जा सकती हैं आपसे। लाइक व्हाट इज PAF, व्हाट डू यू मीन बाय PAF? मैम प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, इस तरह से आपसे और चीजें पूछी जा सकती है। ADP क्या होता है, ठीक है, या फिर आपसे 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर क्या होता है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको क्वेश्चन बैंक बनाकर दिया था बहुत पहले, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे। यस मैम, आपने पूछा स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर क्या होता है, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्लॉटिंग फैक्टर को आप क्रिसमस फैक्टर के नाम से कहते हैं और क्यों कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स में। 5 और 10 में तो आप जैसे पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन लिखते हैं वो आप लिख सकते हैं, पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए थोड़ा अच्छे से पढ़िए। मैम तो जैसे इसमें हम पहले आपने बताया कि 3 एक्सप्लेन कर दिए, 3 मेजर जो प्रोसेसेस थे, प्लेटलेट प्लग और वो वैसोकंस्ट्रिक्शन और फाइनाइट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। उसके बाद फिर हम एक रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे फ्लो चार्ट के फॉर्म में कि मतलब स्टेप बाय स्टेप बनाइए, डायग्राम बनाइए, टैबुलर फॉर्म, जैसा भी आपको ठीक लग रहा है। ये तो हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा कि हमको पूछा गया है इसमें ये प्रोसेस होता क्या है। तो इसके बाद अब जो सेकेंडरी आता है कि जैसे कि अनिकेत ने बोला कि लाइसिस ऑफ ब्लड हम बताएंगे, क्लॉट रिट्रैक्शन हो रहा है, तो मैम ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन ये सेकेंडरी कंसर्न रहेगा। प्राइमरी हम फोकस कर डिपेंड कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स है। इफ इट इज अ 5 मार्क्स यू कैन स्टॉप इट अप टू जो आपका पॉइंट है, जहां तक क्लॉटिंग फैक्टर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, विद डायग्राम्स।
आप उसमें जो है से वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर का एक टेबल बना दिया आपने कि 12 क्लॉटिंग फैक्टर है, वहां आपने इसे वाइंड अप कर दिया। लेकिन अगर आपका ये 10 मार्क्स का है तो आपको इसे स्टेजेस ऑफ क्लॉटिंग प्लस जो आप कह रहे हैं ना आगे ब्लड क्लॉट या क्लॉट रिट्रैक्शन, वहां तक आपको इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, जिसमें आप रोल ऑफ कैल्शियम या पोटाशियम हो गया, विटामिन, ये सब हाँ प्रोफॉर्म, ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। विटामिन के है, ये सारी चीजें आपको जो है उसमें ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। एनी अदर डाउट्स? और जो ये डिजीज है, ब्लड डिसऑर्डर्स है, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बनेंगे। एक स्लाइड दे रखी है ना अलग से मैंने आप लोगों को ब्लड डिसऑर्डर्स के नाम पे, यस मैम। उसमें से 2 मार्क्स क्वेश्चन बहुत इजीली बनेंगे, तो अच्छे से पढ़ लेना उनको। और स्पेसिफिकली अनीमिया की कोई ऐसी टाइप ना हो जो आपको पता ना हो। कैन बी आस्क्ड कि इस चीज का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है। विटामिन B12 से होने वाली जो डेफिशिएंसी है उससे कौन सा अनीमिया होता है, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैम उस स्लाइड के अंदर मैम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के सामने परनीशियस एनीमिया क्यों लिखा है हमने? उसे परनीशियस एनीमिया भी कहते हैं ना। मेगैलो का मतलब होता है साइज इंक्रीज हो साइज जाना। बड़ा हो जाना, यस मैम। परनीशियस एनीमिया में भी क्या होता है, जब विटामिन B12 नहीं होता है तो उसका साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है, जो आरबीसीज है इमेच्योर टाइप रह जाता है, तो वो इस वजह से उसको परनीशियस एनीमिया को हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। उसके जो अपीयरेंस है, वो जो सेल है वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं आरबीसीज का साइज फ्रॉम द नॉर्मल। हम जैसे क्वेश्चन ऐसे व्हाट इज एनीमिया और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया में हम पहले एनीमिया एक्सप्लेन करके उसके बाद एनीमिया के नाम लिख दें और फिर 3-4 एनीमिया को एक्सप्लेन कर दें डिटेल में। फ्लो चार्ट बना के करना है। फ्लो चार्ट बना के आप उसको लिख सकते हैं ना कि व्हाट इज अनीमिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसके साइन एंड सिम्टम्स लिख सकते हैं जो थोड़े बहुत हमें याद भी रहते हैं, ठीक है। फटीगनेस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि कई बार ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है, या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। 1-2 पॉइंट वो लिख के फिर आप उसके टाइप्स का पूरा एक टेबल बना दीजिए, फ्लो चार्ट टाइप्स बना दो कि उसमें इतने तरह के अनीमिया होते हैं। फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर दो, कुछ तो नाम से याद रहते हैं ना उसमें। कम से कम आपके 4 या 5 एनीमिया तो ऐसे हैं जो आपको नाम से ही याद रहेंगे, इसमें क्या चीज होती है, उनको एक्सप्लेन कर दो आगे। पर डिपेंडिंग वो कितने मार्क्स का है, अगर 10 मार्क्स का है तो आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अनीमिया मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपके सिलेबस में अनीमिया स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अनीमिया का। बाकी चीजें ऐसा है कि मैंने आपको करवा दिया है, 2 मार्क्स में आए तो आप कर सकते हो, वो इस तरह से है। क्लियर हो गया? मैम हाँ मैम अगर अनीमिया में क्वेश्चन आता है तो फिर जैसे अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो ये बताया जाएगा ना कि जितना भी अनीमिया उस सबको डिफाइन करके अलग अलग तरीके से मतलब परफॉर्म करने के लिए। डेफिनेशन लिखोगे, टाइप्स लिखोगे, क्या सिम्टम्स आते हैं, उसका फ्लो चार्ट बनाओगे, उसमें से कम 5-6 तो एक्सप्लेन करोगे ही ना, और वो 5-6 एक्सप्लेन करने में ही आपका बहुत सारा कंटेंट जो है कवर हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिफाइन हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के ऊपर अलग से पूरा टॉपिक है, ठीक है। तो वो चीजें थोड़ी बहुत पढ़ लेना, बिकॉज क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ से घूम फिर के आ जाते हैं पेपर में। आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो आपके दूसरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में, जिन्हें जनरली कहा जाता है आउट ऑफ सिलेबस। वो आउट ऑफ सिलेबस ऐसा रहता है कि सिलेबस में वो चीज पॉइंट आउट नहीं की होती है, बट अगर आप वो पढ़ के जाते हो तो चांसेस ऐसे हैं कि क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आ जाए, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो मैम एक सेल डिवीजन का क्वेश्चन है, हाँ वो तो पूरा डिटेल में विद डायग्राम्स, मियोसिस माइटोसिस के अच्छे से डायग्राम बनाकर एक एक स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन करके, इसमें कौन सा फेज होता है, वो फेज को क्या कहते हैं, वो सारा एक्सप्लेन करिए अच्छे से। इसमें 2 फेज होते हैं स्टार्टिंग में, तो मैम एक इंटरफेज होता है और एक माइटोसिस फेज, फिर वो माइटोसिस आगे फर्दर 2 में डिवाइड होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। वो उसको देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना 5 मार्क्स में, आप उसको लिमिट कर दो
कि ये चीज जरूरी है। क्वेश्चन को देख के, जब भी क्वेश्चन देखना है ना, उसमें ये चीज जरूर फोकस करनी है। अगर मियोसिस पूछा है तो तुम्हारे माइटोसिस लिखने का कोई फायदा नहीं है वहां पे, वो जीरो है एक तरह से। इसलिए क्वेश्चन को प्लीज पढ़ के अटेम्प्ट करिए। फिर आपके ये बोलने का कोई फायदा नहीं होगा कि मैम मैंने पूरी प्रोसेस सही लिखी है, आपने मार्क्स नहीं दिए, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन पूछा नहीं है तो उसके मार्क्स भी कुछ नहीं है। और मैम जो कई बार जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिनका पूरी जो 10 मार्क्स की थ्योरी पूरी अच्छे से बनती है कि कहते हैं कि इसमें कुछ मिस नहीं कर सकते, बट समटाइम्स मैम वो क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ गया तो हमें लिमिट तो करना पड़ेगा उसे। ऑब्वियसली तो 5 मार्क्स के लिए आप तो थोड़ी फिर ना हम उसको एक्सटेंड करोगे। फिर मैम तो हम उसमें ऐसा क्या करें कि हम लिमिट कर भी पाए और लाइक मार्क्स भी ना कटे, क्योंकि हमारे देखो, अकॉर्डिंग की इम्पोर्टेंट अगर चीज मैं कुछ और हुई। आपको ये कहूं कि लिम्फेटिक सिस्टम आपको 5 मार्क्स में लिखना है, ठीक है, अभी मैंने 10 मार्क्स में बताया, 5 मार्क्स में आप क्या करोगे? 5 मार्क्स के लिए आपने लिख दिया लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम के बाद आपने उसका वो डायग्राम बना दिया, फिर आपने जो उसके पार्ट्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उनके नाम लिख दिए, ठीक है, और उसके जो फंक्शंस हैं वो लिख दिए, लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस लिख दिए। वाइंड अप हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन। आपको कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करके उसका कंटेंट बढ़ाने की इतना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें टाइम भी देखना है ना। अगर आप 10 नंबर के क्वेश्चन को फॉर एग्जाम्पल आप 30 या 35 मिनट्स लगाते हो, एक्सटेंडेड 40 मिनट्स भी लगाते हो, तो आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए उससे आधा ही टाइम रहेगा ना, ठीक है। तो आपको जो 2 और क्वेश्चन करने हैं उनके लिए आप मान के चलिए आपको और 40 मिनट की जरूरत है। फिर लास्ट के जो आपका एक सेक्शन बच गया उसके लिए तो आपके पास सिर्फ 10 मिनट रह जाएंगे, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसलिए कहती हूँ जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसकी स्पीड फास्ट रखिए, जो याद आता है बस फटाफट लिखते रहो। पॉइंट्स भूलते हैं, साइड में मार्जिन बनाइए पेपर के अपने, और वहां पर कुछ पॉइंट्स लिख लो कि मुझे इस क्वेश्चन में ये पॉइंट्स ऐड करने हैं। बाद में उसे क्रॉस चेक कर लो कि भाई कुछ छूट तो नहीं गया। कई बार याद करते करते कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, जो आपको स्टार्टिंग में याद होते हैं बीच में भूल जाते हो, ठीक है, तो उसे साइड में लिख लो, फिर याद आ जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। करण आपको समझ में आ रहा है? यस मैम, अभी तो ट्राई कर रही हूँ, मतलब कि कर रहा हूँ स्टडी। रैशनल्स दोगे? हम देखता हूँ, नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ो, अगर होगी कोशिश करो, 30 देखेंगे। एटलीस्ट यस देने मैम, की कर रहा हूँ कोशिश वो तो तो। करो। यस यस मैम। नोट्स वगैरह मिल गए आपको सारे एचएपी के जो भी थे? यस यस मैम। भाई बाकी लोग थोड़ी बहुत हेल्प कर देना, ठीक है। कहाँ है सीआर? यहाँ हो गया। हाँ, अंकित झा, हेल्प करनी है थोड़ी, है ना? यस मैम, जरूर मैम, करते हैं हम तो। हाँ, करनी चाहिए। मैम बाकी ये अनिकेत है। देना कंपल्सरी है? हाँ जी, बिल्कुल। पेपर सेशनल? नहीं दिए तो इंटरनल कहाँ से जाएगी? यस मैम। क्या बात है, इतना पढ़ पढ़ के इतना थक गए कि अब सेशनल तक लिखने की हिम्मत नहीं बची है? मैम पूछ के इंटरनल का नहीं लगा दोगे मैम? हैं? ऐसे ओरली पूछ के ये क्वेश्चन। अच्छा, ऑरली पूछ के फिर तो 0 ही लगेंगे उस हिसाब से, तो क्लास तो हम इंटरेक्ट आंसर करती नहीं है बताएंगे। तुम्हारी। पूछ के नहीं लगते हैं मार्क्स, लिखना पड़ता है। स्कूल में नहीं यूनिट टेस्ट देते थे? मैम ये पेपर बाहर भी जा सकते हैं? नहीं नहीं, ये वाले पेपर बाहर नहीं जाते, फाइनल पेपर बाहर से बन के आता है और बाहर ही चेक होते हैं ना। आप एक्सटर्नल को जानते हो ना हम जानते हैं। मैम और तो बता इस देती हूँ, बार जो छोटे से छोटे पेपर को भी ना बहुत स्ट्रिक्ट टीचर मिल जाए तो फेल होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मैं पहले बता देती हूँ। तो अपना 100% दीजिए, ठीक है। रेम बायो जैसे पेपर में भी सप्लीज आ जाती हैं। हाँ दीपक, क्या पूछ रहे थे? मैम इस बार जो एमएसटी होने वाले हैं उसके पेपर तो आपके पास जाएंगे? हाँ जी, वो यस इंटरनल है तो मैम। इंटरनल टीचर चेक करेगा उसे। नहीं मैम, वही पूछ रहा था बस। नहीं, इंटरनल वाले जो मार्क्स जाते हैं
वो इंटरनल टीचर के हाथ से ही जाते हैं, तो तुम लिखोगे तो उस हिसाब से नंबर मिलेंगे, लेकिन फाइनल एग्जाम्स में कोई तुम्हें नहीं जानता, ठीक है? तो फाइनल के हिसाब से करके चलिए पेपर, और मैम जो अच्छे ये से पढ़ आरईएस लेना। हाँ मैम ये जो आरईएस वाला सिस्टम, आरईएस सिस्टम है जो ये वाला, ये 5 मार्क्स में आएगा, 10 मार्क्स में भी आ सकता है ये वाला? 10 में भी आ सकता है। उसमें फिर उसमें इतना कंटेंट, हम इसमें इतना 10 ज्यादा वाले के लिए कंटेंट नहीं है ना, कंटेंट नहीं है। इतना नहीं, कंटेंट कंटेंट नहीं है ना में इसके लिए। आप 10 वाले के लिए उसका कंटेंट बढ़ा सकते हैं ना, जैसे आपने मोनोसाइट्स वगैरह पहले पढ़े हैं, अलग अलग सेल्स में आपने मोनोसाइट्स पढ़े होंगे स्टार्टिंग में, वो सारा कंटेंट उठा के वहां पर ऐड कर सकते हो। जब आपने जैसे स्टार्टिंग में हिमेटोपोइसिस पढ़ी थी, वहां मोनोसाइट जैसी कुछ चीजें पढ़ी थी ना, यस मैम, वो सारी चीजें उठा के आप उसमें ऐड कर सकते हो। मोनोसाइट ओरिएंटेड जो चीजें आपने पढ़ी हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, सब ऐड कर दो, कैसे नहीं बढ़ेगा कंटेंट। मैम जैसे मैंने अभी इसमें जो टेस्ट में किया था उसमें मैंने आरईएस को एक्सप्लेन कर दिया पहले क्या होता है, फिर उसके 3 पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए, मोनोसाइट्स होते हैं, वेंट्रिंग मैक्रोफेजेस और मिक्स मैक्रोफेजेस, फिक्स मैक्रोफेजेस होते हैं। हाँ फिर मोनोसाइट्स को एक्सप्लेन कर दिया था, उसके ठीक है। फंक्शंस बता दिए मोनोसाइट्स के, हम्म और फिर वॉन्डरिंग टिश्यू मैक्रोफेजेस को एक्सप्लेन कर दिया, फिर फिक्स टिश्यू मैक्रोफेजेस का जो टेबल है लिवर और स्किन वगैरह वाला, कूफर सेल्स वाला, वो कर दिया, फिर फंक्शंस ऑफ मैक्रोफेजेस कर दिया, और फिर फंक्शंस ऑफ आरईएस कर दिया था। हाँ, इसमें वही चीज है ना, जैसे आपका जो मोनोसाइट वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो मोनोसाइट वाला पार्ट है वो कम एक्सप्लेन हो रखा है अगर आप आरईएस सिस्टम को फोकस करते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने मोनोसाइट्स पढ़ नहीं रखे, आपने मोनोसाइट्स पढ़ रखे हैं, डिटेल में पढ़ रखे हैं, वो प्रोसेस उठा के आप यहाँ ऐड कर सकते हो, कंटेंट अपने आप बढ़ जाएगा। वो तो देखो 5 मार्क्स के हिसाब से तो ठीक है ना ये इतना हाँ, ये कंटेंट? 5 मार्क्स के लिए तो ये बहुत है, लेकिन अगर आपको ये 10 मार्क्स में आता है तो आप यहाँ पे मोनोसाइट्स को जो है एक्सटेंड कर सकते हो, मैक्रोफेजेस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, जैसे यहाँ आरईएस को मैंने पॉइंट्स में लिख रखा है, इसमें मोनोसाइट होते हैं, मोबाइल मैक्रोफेज या फिक्स होते हैं, आप इसका फ्लो चार्ट बना लो। फ्लो चार्ट बनाने से ऐसा होता है कि आपका स्पेस भी ऑक्यूपाई हो जाता है और आपका पेपर प्रेजेंटेबल फॉर्म में लगता है। सो ट्राई टू फाइंड वेज कि आपके पास अवेलेबल जो भी कंटेंट है उससे भी आप जो है अपना क्वेश्चन अच्छे से प्रेजेंट कर सको, और ये एट द स्पॉट नहीं आता कि आपने पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो आपके दिमाग में आएगा, जब पढ़ रहे होते हो ना उस टाइम सोचा करो इस क्वेश्चन में मुझे इस तरह का फ्लो चार्ट बनाना है, एंड ट्राई टू फाइंड डिफरेंट वेज, ठीक है? जो मैं बताती हूँ उसमें अगर आप कुछ नया ऐड कर सकते हो तभी वो आपके पार्ट से कि आपने कुछ इनोवेटरी उसमें ऐड करा है, ठीक है? ओके मैम, यस मैम। मैम हाँ जी, मैम सेल वाले में सेल का डिफिनेशन लिख के और चार्ट बना के पार्ट डिस्क्रिप्शन फंक्शन ये सब लिख देंगे और फिगर बना देंगे, हो जाएगा ना? हाँ, सारे टाइप्स उसके एक्सप्लेन करोगे, राइबोसोम्स को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, और कुछ जगह पे आपके जो डायग्राम्स हैं वो कुछ ऑर्गेनेली स्पेसिफिक भी है, जैसे कई जगह माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दे रखा होगा आपको, ठीक है, राइबोसोम्स का दे रखा है, तो वो साथ साथ छोटे छोटे डायग्राम्स आप साथ में बना सकते हैं, उससे कंटेंट और इंक्रीज हो जाएगा अगर 10 मार्क्स में पूछा जाता है तो। ओके, ठीक थैंक है, यू। अटेंडेंस हो गई है आप लोगों की, अच्छे से पढ़िएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। हम कल कौन सा रिवीजन कर जाना टॉपिक का? मैम हमसे पहले चले गए।